Hello students, I am Nirav Rajans. Dear students, since last couple of sessions we have studied about one category of conversion, that is what decimal to any conversions, means decimal to binary conversions, decimal to octal conversions and decimal to hexadecimal conversions. But from today's we will learn about new category, that is what any to decimal conversions, means binary to decimal, octal to decimal and hexadecimal to decimal conversions. In today's sessions, we are going to learn about binary to decimal conversions. In these sessions, we will learn how to convert any binary numbers into decimal number. Now, let's begin our session. Dear students, here I take an example 101101111 of binary number. Here we need to convert this binary number into decimal number. Before we start our procedure, you must have to recall the concept of positioning of number system. As here we discussed in our previous sessions positioning of number system, there is two parts in any numbers. One is integer part and second one is fractional part. And most important things is assignment of power. In any integer value, having the power is starting from 0 and it will increase progressively in addition of 1 in the left side directions from fractional point. Similarly, in any fractional value, the power is starting from -1, -2, -3 and so on in the direction of right side from the fractional point. And at here, accordingly, we assign MSB and LSB in any types of numbers which having integer and fractional value. Now, let's start our procedure. यहाँ पे हमें एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है, that is what 101101111. अब फर्स्ट स्टेप के अंदर हमें उसको पावर असाइन करनी होगी. सो यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है उसका पावर होगा 0 और उसके बाद वाला डिजिट है उसका पावर होगा 1 एंड स्टेप बाय स्टेप उसके पावर इंक्रीज होते जाएंगे और फर्स्ट वन डिजिट जो हम MSB कंसीडर करेंगे उसका पावर होगा हाईएस्ट पावर, दैट इज व्हाट 7. एंड हियर फॉर आवर रेफरेंस वी कैन यूज कैलकुलेटर. अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें सिर्फ यहाँ पे जो गिवन नंबर दिया है उसकी हर एक डिजिट को बाइनरी नंबर सिस्टम के बेस और रेडिक्स 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ पे दी हुई हर एक डिजिट के पावर को उस पर्टिकुलर 2 के ऊपर असाइन करना होगा. सो यहाँ पे देखिए कि 1 into 2⁻7 यानी कि हमने फर्स्ट डिजिट 1 है उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई किया और वो जो फर्स्ट डिजिट का जो पावर था 7 वो 2 को असाइन कर दिया. उसी तरह गिवन नंबर के हर एक पावर को 2 को असाइन करना होगा. राइट, अब सिंपल हो गया. 1 into 2⁻7 प्लस 0 into 2⁻6 प्लस 1 into 2⁻5 प्लस 1 into 2⁻4 प्लस 0 into 2⁻3 प्लस 1 into 2⁻2 प्लस 1 into 2⁻1 प्लस 1 into 2⁻0. यानी कि यहाँ पे देखिए हर एक डिजिट एक दूसरे के साथ एडिशन के फॉर्म में कनेक्टेड है. क्लियर. अब नेक्स्ट स्टेप में हमें सिंपल उसका सिंप्लीफिकेशंस करना है. राइट. सो यहाँ पे देखिए जो 2⁻7 है उसका अगर हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे देन 2⁻7 इज इक्वल्स टू 128, देन 2⁻6 इज इक्वल्स टू 64, 2⁻5 इज इक्वल्स टू 32, 2⁻4 is equals to 16, 2⁻3 is equals to 8, 2⁻2 is equals to 4, 2⁻1 is equals to 2 and last and very important digit that is what 2⁻0. यहाँ पे ध्यान रखिएगा हमारा रूल्स है anything raised to 0 is what 1. क्लियर. अब सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है और उसको एडिशन करना है. देन विल गेट दिस टाइप ऑफ नंबर्स 128 plus 0 plus 32 plus 16 plus 0 plus 4 plus 2 plus 1. Now finally additions of this whole number, that is what 183. अब हम लास्ट स्टेप में सिर्फ हमारा आंसर क्रिएट करेंगे
सो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स 10110111 of binary number which is converted into the decimal form like this 183 of decimal number। बहुत ही आसान प्रोसीजर है, सिर्फ आपको फर्स्ट स्टेप में पावर असाइन करने में ध्यान रखना है। यहाँ पे ये जो नंबर था वो इंटीजर नंबर था। अब हम लेने वाले हैं नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज बेस्ड ऑन फ्रैक्शनल नंबर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए आई टेक 0.10101 ऑफ बाइनरी नंबर, अब उसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमारा नंबर है फ्रैक्शनल वैल्यू। सो 0.10101 को पावर असाइन करते वक्त हमारा जो फर्स्ट डिजिट जो फ्रैक्शनल पॉइंट से नजदीक है उसका पावर होगा -1, उसके बाद वाले डिजिट का -2 एंड जो लास्ट मोस्ट डिजिट है उसका पावर होगा -5। यहाँ पे भी अगेन हमारे रेफरेंस के लिए हम कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। सो इसका प्रोसीजर देखते हैं। अब हमारे नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि फ्रैक्शनल पॉइंट के बाजू में जो फर्स्ट डिजिट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और वो डिजिट का जो पावर है वो 2 को असाइन करना है। ऐसे ही हर एक डिजिट का मल्टीप्लिकेशन 2 से होगा और वो जो बेस और रेडिक्स है 2 उसके ऊपर जो गिवन नंबर है उसका पावर असाइन कर देना है और उसके बाद सिंपल सिंप्लीफिकेशंस। क्लियर? सो यहाँ पे देखिए 1 into 2 raised to -1 plus 0 into 2 raised to -2 plus 1 into 2 raised to -3 plus 0 into 2 raised to -4 plus 1 into 2 raised to -5। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे with the help of calculator, then we'll get 2 raised to -1 is equals to 0.5, 2 raised to -2 is equals to 0.25, 2 raised to -3 is equals to 0.125, 2 raised to -4 is equals to 0.0625 and last digit that is 2 raised to -5 is equals to 0.03125. Now simple simplifications in next step, that is what 0.5 plus 0 plus 0.125 plus 0 plus 0.03125। अब फाइनल एडिशन के बाद हमें आंसर मिलेगा 0.65625। फाइनल हम हमारा आंसर क्रिएट करेंगे दैट इज लाइक दिस 0.10101 of binary number which is converted into decimal form like this 0.65625। Dear students, now we take another example which having combination of integer part as well as fractional part. At here I take one example 1011.1001 of binary number. Now we convert this binary number into decimal number. यहाँ पे हमारा जो नंबर है 1011.1001 उसमें 2 पार्ट है, इंटीजर पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट। अब हमने आगे जैसे सीखा था वैसे ही इंटीजर पार्ट के अंदर हमें पावर असाइन करनी होगी और इंटीजर पार्ट की पावर होगी पॉजिटिव और फ्रैक्शनल पार्ट की पावर होगी नेगेटिव। जैसे कि इंटीजर पार्ट में आप देख रहे हैं 0 1 2 3 पावर है और फ्रैक्शनल पार्ट में आप देख रहे हैं -1 -2 -3 और -4। अब यहाँ पे हमारे रेफरेंस के लिए हम कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो भी नंबर्स दिया हुआ है उसके साथ बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस और रेडिक्स जो कि 2 है उसको मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे दिए हुए नंबर्स का जो भी पावर है वो बेस 2 को असाइन करना होगा। यानी कि इंटीजर पार्ट का जो भी पावर है वो भी हमें नंबर 2 को असाइन करना है और फ्रैक्शनल पार्ट का जो भी नेगेटिव पावर है वो भी हमें असाइन करना है। नाउ स्टूडेंट्स यू कैन सी इन दिस स्टेप 1 into 2 raised to 3 plus 0 into 2 raised to 2 plus 1 into 2 raised to 1 plus 1 into 2 raised to 0 point 1 into 2 raised to -1 plus 0 into 2 raised to -2 plus 0 into 2 raised to -3 plus 1 into 2 raised to -4। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें सिंपल ये सभी स्टेप का सिंप्लीफिकेशन करना होगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल सिंप्लीफिकेशंस वी विल गेट दिस टाइप ऑफ आंसर। That is what 11.5625. So finally
we convert 1011.1001 of binary number into the decimal number like 11.5625. Now students, हम आपकी प्रैक्टिस के लिए एक और कॉम्बिनेशन वाला सम लेते हैं। तो यहाँ पे एज एग्जाम्पल मैंने लिया है 11.0111। अब उसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आपको प्रोसीजर पता ही है। सो अब हम देखते हैं प्रोसीजर। तो यहाँ पे जैसे आगे बताया वैसे दो पार्ट है, इंटीजर पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीजर पार्ट को हम पॉजिटिव पावर असाइन करेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट को हम नेगेटिव पावर असाइन करेंगे। दोनों की डायरेक्शंस ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है फ्रॉम फ्रैक्शनल पॉइंट। अगेन यहाँ पे हमारे रेफरेंस के लिए हम कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। और अभी जैसे आपको पता है नेक्स्ट स्टेप के अंदर हर एक गिवन डिजिट को बेस और रेडिक्स ऑफ बाइनरी नंबर 2 है उसे मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे जो नंबर दिया है उसके जो भी पावर है, पॉजिटिव पावर हो या फिर नेगेटिव पावर हो, अकॉर्डिंग टू दी जो भी डिजिट है उसको हमें असाइन करना होगा। और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें इस तरह से प्रॉपर वैल्यू मिलती जाएगी। अब फाइनली हम सिंप्लीफिकेशन का आंसर देखेंगे, दैट इज व्हाट 3.4375। सो अवर गिवन नंबर 11.011 of binary number is converted into the decimal number of 3.4375. So students, यहाँ पे आपने देखा कि ये जो भी हमने कन्वर्जन किया वो बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको ये बहुत ही ध्यान रखना है कि आप जब पावर असाइन करते हो तो वो पावर असाइन करने में कहीं भी गलती ना हो। यानी कि इंटीजर पार्ट हो तो उसका पावर पॉजिटिव होगा और फ्रैक्शनल पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड तक वो पावर जाएगा, और अगर फ्रैक्शनल वैल्यू है तो फ्रैक्शनल पॉइंट से राइट हैंड साइड में वो पावर जाएगा। और यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू में पावर होगा इनवर्स फॉर्म यानी कि नेगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you understood the procedure of binary to decimal conversions. At here, I am going to represent you some couple of examples for your more practice. This way, we can convert any binary number into decimal number. Now, in next sessions, we will learn about any octal number to decimal number. Till then, be curious and keep learning. Thank you.